Nadi Sangitam Kapitra Namo Bhajan Viksham Ulastom Sor Vinas Karyakram Namavi Vigeshwar Saukat Mangilam मंच पर उपस्थित हमारे सभी ऋषिगण और यहाँ पर उपस्थित मनम क्षत्रिय कुलों के समस्त बंधु एक बार जोर से बोलना है सनातन धर्म की जय बोलो क्षत्रिय कुलों की हमारा हिंदी है और तमिल में अनुवाद कौन करेगा इधर में तमिल को வந்து கலந்துருக்கோம் இப்போ நம்ம கிட்ட பேசுறவர் வந்து ஸ்ரீ நாராயணகிரிஜி சொந்த ஊர் வந்து ராஜஸ்தான் இவரோட அமைப்பு வந்து காசியாட்ட அளவில் வந்து இந்த போராட்டம் வந்து ராமமந்திரி பண்ணாங்க இன்னைக்கு ராமமந்திரி வந்து முக்கியமா குரல் கொடுத்தது வந்து சத்தியார் இன்னைக்கு அந்த கோயில் கட்டுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம சங்கடத்தில் இருக்க ஸ்ரீ நாராயணகிரிஜி அவர்கள் அவரோட ஆலோசனைகள் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு மக்கள் சத்தியத்துக்கு இருக்கிறாங்க அதை வந்து நம்ம வந்து வரவேற்று ரொம்ப ரெண்டு கையும் நல்லா தட்டி அவரை வந்து வரவேற்கணும் हमारा विशेष रूप से देखिए कि संपूर्ण विश्व में क्षत्रिय कुल का मतलब होता है कि राजपूत का पुत्र जो राजपूत है जिसका राज किया है वो राज करने वाला जो है कोई ज्यादा नहीं होता है। देखिए कि हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश में एक है तो क्षत्रिय जो होते हैं पूरा विश्व में राज करने वाले हैं। यहाँ पर सहज वंश हुआ चाहे चेन्नई है नाम है पूरा दुनिया में जो भी अपना जितना भी भारत में चाहे पूरे विश्व के अंदर में प्राचीन समय में आज से करोड़ों साल पहले से ही भगवान राम को भी जब भगवान विष्णु के रूप में अवतार लेके धरती पर आए थे तो सबसे पहले क्या है कि वो क्षत्रिय को व्यवस्था बनाने के लिए क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। राम है कृष्ण है ये हमारा जैसे विशेष रूप से 3 कुल होता है जैसे सूर्य कुल है चंद्र कुल है और अग्नि कुल। आप लोग यहाँ अग्नि के रूप में सबको मानते हैं अग्नि के रूप में மக்களே ஹிந்தி வார்த்தையில வந்து சில அர்த்தங்கள் தமிழ்ல வந்து சில வார்த்தைகள் வந்து மாறினா கொஞ்சம் மனுஷங்க நம்ம குருஜி சுவாமி குருஜி வந்து சொல்றது வந்து என்னன்னா ராஜ்பூத் பேர் வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன ராஜா வந்து இந்த நாட்டை ஆளணும் உலகம் முழுக்க ஆளணும் அதனாலதான் ராஜ்பூத் பேரே வந்தது। வடநாட்டு சென்னை தவிர வடநாட்டுல வந்து எல்லாருமே ராஜ்பூத் தான் கூப்பிடுவாங்க ஏன்னா ராஜ்யம் வந்து 1000 வருஷமா இங்க பண்ணிருக்காங்க। ராம் வந்து சிவன் ரூப்ல வந்து இந்த பூமிக்கு வந்து அவர் வந்து அவதாரம் எடுக்கும் போது சில நல்ல காரியங்கள் இந்த மண்ணுக்கு செஞ்சு இன்னைக்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா வந்து 2000 வருஷோட வரலாறு இன்னைக்கு இருக்குன்னா அது வந்து ராம் வந்து विष्णु रूप में இந்த பூமிக்கு வந்து கால் எடுத்ததுதான்। कोई भी हो भाषा से क्या है कि हम लोग हमारा देखिए वेदपाल मकराना जी है हमेशा से पूरा देश में धामते रहते हैं सबके लिए जो बोलते रहते हैं कि हमारा खंडन सेना के अध्यक्ष है हमारा स्वामी गणराज जी हमको कई बार यहाँ पर बुलाया और इन्होंने हमारा जुलेश्वर मंदिर में जो रावण के पिता विश्वशर्मा ने जो ऋषि है रावण के पिता विश्वशर्मा और वो शिवलिंग को स्थापना किया बहुत प्राचीन शिवलिंग है वहाँ पर गाय आके जो जताता और वो प्रकट हुए हैं। तो पूरा दुनिया में कहीं पर भी यहाँ पर क्षत्रिय रहते हैं तो क्षत्रिय का काम है कि अनुशासन करना राज करना और सबको न्याय देना ये क्षत्रिय का काम होते हैं। ராவணோட பிதா அவர்கள் வந்து இந்த பூமிக்கு வரும்போது வந்து வன்னியர்குல சத்திரியர் என்ன சத்திரியர் வரல வன்னியர்குல சத்திரியர் சொன்னோம் அவங்களோட முக்கியமான வேலை அன்னைக்கு இருந்தது வந்து இந்த நாட்டை ஆண்டது இந்த நாட்டில் ராஜ்யம் பண்ணது எங்கெல்லாம் அநியாயம் நடந்ததோ அந்த அநியாயத்தை தட்டி கேட்டு அந்த நியாயத்தை வந்து நிலைநிறுத்தது தான் வந்து ஒரு மனிதர்கள் சத்திரியரோட வந்து முக்கியமான காரணத்தை சேர்ந்து हमारा भी इस टाइम में 500 वर्षों के बाद में राम मंदिर जो बना और यहाँ पर तमिलनाडु के जो मनम क्षत्रिय कुलम है वो 15,000 जाके उसको तोड़ दिया वहां से हटा दिया। ये पूरा दुनिया के अंदर में बहुत लोगों का नाम आया परंतु जो है वहां से जो ढांचे को हटाया है वो तमिलनाडु के क्षत्रिय कुल ने हटाया है। அயோத்தி பாபர் மசூதி வந்து இடிக்கப்பட்டது வந்து முக்கியமான 15,000 பேர் வந்து இன்னைக்கு வழக்கு தொடர்றாங்க। அதுல வந்து முக்கியமான வந்து தமிழ்நாட்டுல இருந்து நிறைய பேர் வந்து அந்த போராட்டத்தை கலந்துக்கிறாங்க। அந்த போராட்டத்துல வந்து அதிகமான பேர் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் கேஸ் ஆயிருக்கிறது வந்து ஒரு சத்திரகுலியர் தான் வந்து சொல்றாங்க। இது நமக்குள்ள வந்து ஒரு பெருமையான விஷயம்। अभी हमारे जो अभी बोल रहे थे जो
होम ट्रेस के जो पुत्र है वो बैठे हुए सबसे आगे कुर्सी में, और वो क्या है कि पूरा भारत में हमारा विदेश में वेद विद्यालय है, 100 विद्यार्थी यहाँ पे उनके पिताजी ने बहुत बार बुलाया। तो हमेशा से क्षत्रिय जो है वो पूरा भारत में नहीं पूरा विश्व में सनातन धर्म को उत्थान का काम करता है। और राज करने के लिए क्या होता है कि उसका संख्या का जरूरत नहीं है कि भाई कितना संख्या होना चाहिए, वो नहीं, संख्या कितना भी हो थोड़ा हो, जो राजा तो एक ही होता है। तो वो हमेशा से प्राचीन कुल से ही क्षत्रियों ने राज किया है। जैसे हमारे राम जन्मभूमि में हमारे वहाँ पर एक बाबू का पुरवा है, अयोध्या के पास में एक गांव है जिसका नाम है बाबू का पुरवा। वहाँ के क्षत्रियों ने जो है 500 साल तक, जब तक उनके मन में था कि हमारा पिताजी दादाजी परदादाजी बोल के गए हैं कि मंदिर इसी जगह पर बनेगा चाहे प्रतिष्ठा कितना भी बने, तो क्षत्रियों के संकल्प को वो सिद्ध हुआ और आज वहाँ पर दिव्य और भव्य मंदिर बना। 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு வரலாறுல வந்து ஒரு பகுதியில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ராம் மந்திர் வந்து அயோத்தியில தான் கட்டி ஆகணும், வேற எங்கேயும் கட்டுறதுக்கு வந்து அந்த இடம் பார்க்காதீங்க. இது 500 வருஷம் முன்னாடி வந்து இது எழுதப்பட்ட ஒரு புராணத்தில் இருக்கிற ஒரு இடத்துல வந்து எழுதிருக்காங்க. இன்னைக்கு வந்து அந்த இடத்துல கட்டி இன்னைக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய வந்து ஒரு மக்கள் தொகை இருக்கிற வந்து அங்கே போய் கும்பிடுறாங்கன்னா, அதுக்கு வந்து 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஆளுங்க வந்து அங்க வந்து எழுதி வச்ச ஒரு காரணத்தினாலதான் இன்னைக்கு அயோத்தியில கட்டப்பட்டது. இன்னைக்கு அயோத்தியில வந்து நம்ம வந்து நடிக்க வாய்ப்பே கிடையாதுன்னு வந்து நம்ம மகாராஜி சொல்றாங்க. ஏன்னா அவர் உடனடியாக வந்து ஒரு 30 வருஷமா இந்த ராம மந்திர் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி பல ரிசர்ச் பண்றாங்க, பல விஷயத்தை வந்து எடுத்துக்காட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிவிக்கிறாங்க. அதனால அவர் சொல்றது வந்து இந்த உலகத்திலே இவ்வளவு சிறப்பா இவ்வளவு கரெக்டா வந்து சொல்ல முடியாது. அதனால இவர் சொல்றது வந்து எல்லா உலக வாழ்க்கைக்கும் நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்கு. மகாராஜி, पूरे भारत में जो हमारा छत्तीस स्कूल चलता है, ये क्षत्रियों का छत्तीस स्कूल है। तो ऐसा बोला जाता है कि 10 पुत्र जो है वो सूर्य के 10 पुत्र है। இங்க வந்து உலகம் ஃபுல்லா இந்தியா ஃபுல்லா வந்து சத்திரியங்களால இயக்கப்படுற பள்ளி ஸ்கூல் இதெல்லாம் வந்து அதுல 100 பேர் वो 10 पुत्र हाँ सूर्य के சூரிய வம்சத்துல இருந்தா அக்னிகுல வன்னிகுல ராஜ்பூத் எல்லாருமே வராங்க. அதுல வந்து சூரிய பகவானுக்கு வந்து 10 புத்திரங்கள் 10 குழந்தைங்க வந்து இருந்துன்னு சொல்றாங்க. चंद्रमा के 10 पुत्र, அதே மாதிரி சந்திரமாக்கு வந்து 10 குழந்தைங்க இருக்குன்னு சொல்றாங்க. 12 पुत्र ऋषियों के, அதாவது 12 குழந்தைகள் வந்து ரிஷினா நம்ம வந்து நம்ம இன்னைக்கு உட்காந்து நிறைய பேர் ரிஷி, அதனால அவங்களுக்கு வந்து 12 குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு வரலாறு எழுதியிருக்குன்னு சொல்றாங்க. और जो है वो अग्नि के 4 पुत्र, अग्नि कुलंग வந்து 4 குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. अग्नि वंश जो है वो इस तरह से जैसे आबू पर्वत है, हमारे जो आबू के अंदर में पर्वत है, वहाँ मैं ऋषि वशिष्ठ, जब पूरा दुनिया के अंदर में अत्याचार बढ़ गया और सबको वो उधर अपना सब लोगों को मारने लगा, तो ऋषि ने सोचा कि भाई अभी दुनिया में एक अग्नि वंश को उत्पन्न करना है। तो मैं ऋषि वशिष्ठ ऋषि ने, जो राम के भी गुरु थे, मैं ऋषि वशिष्ठ जी ने एक के अंदर में 4 पुत्रों को जन्म दिया। तो इस तरह से वो 36 कुल हो गया। கொஞ்சம் மன்னிக்கணும், சில வார்த்தைகள் தவறாக மன்னிச்சிருங்க, ஏன்னா அவங்க கொஞ்சம் ரொம்ப ஆழ்மான அர்த்தங்கள் சொல்றாங்க. இப்ப வந்து ரிஷிகளுக்கு வந்து 4 குழந்தைங்க இருக்கும்போது உலகத்துல நிறைய அத்தியாச்சாரம் நடந்துட்டு இருக்குது. அதை வந்து சரி பண்ணணும், அதுக்கு வந்து அக்னிகுல சத்திரியர்கள் வந்து உருவாக்குறாங்க, ஒரு யாகம் பண்ணி இந்த ரிஷிகளை ஒன்றா சேர்றாங்க, இந்த பூமியில வந்து ஒரு நியாயம் வரணும்னு சொல்றதுக்கோசம் அக்னிகுல ஒரு சத்திரியர்கள் வந்து உருவாக்குறாங்க. धर्म का जब भी हानि होगा या धर्म का कभी विनाश होने के ऊपर में कभी भी जो है रक्षा करने के लिए हमेशा से क्षत्रिय इस पृथ्वी को बचाने के, धरती को बचाने के कोई भी रूप में क्षत्रिय आते हैं। और वो किसी भी रूप में आए, वो संख्या चाहे कितना भी कम हो, जो हमेशा से साधु संतों का, ऋषियों का, धर्म का, गौ माता का और समाज के अंदर में बैलेंस संतुलन बनाने का हमेशा से क्षत्रियों ने काम किया है। இந்த உலகத்துல முக்கியமா நம்ம பாரதத்துல நம்ம ரிஷிகள், நம்ம சாமிஜி, யார் யார் இங்க வந்து இந்த குலத்தை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு முக்கியமான பணிகளை வந்து பல ஆண்டுகளா எடுத்திருக்காங்க. அவங்களோட முக்கியமான தர்மமே வந்து இல்லைன்னா இங்க எப்பவுமே நியாயம் வந்து இந்த பூமியில எப்பவுமே இருக்கணும், யாருக்குமே அநியாயம் நடக்கக்கூடாது, அதை காப்பாற்றுறதுக்கு முக்கியமான வந்து பங்கு வந்து சத்திரியருக்கு எப்பவுமே புராண காலத்துல இருந்தே இருந்திருக்கு.
मैं यहाँ पर आया तो मैं सुना कि हमारा जो यहाँ पर जो क्षत्रिय जो है वो तमिलनाडु में कुछ कम संख्या में है और यहाँ पर कुछ आरक्षण का भी मांग किया है। क्षत्रिय हमेशा से वो देने वाला होता है। हमारे स्वामी जी भी बोल रहे थे कि क्षत्रिय हमेशा से वो राज किया है और देने वाला होता है। तो हमेशा से चाहे हम लोग कितना भी कम संख्या में हो वो हमेशा राज किया है। तो इसमें कभी भी घबराना नहीं है, हमारा परिश्रम करना, मेहनत करना। एक क्षत्रिय व्यक्ति कहीं पर भी, जब मैं देखा मलेशिया में गया, कंबोडिया में, बहुत से देशों में गया तो वहाँ पर क्षत्रिय राजाओं ने वहाँ भी राज किया है। और यहाँ चेन्नई से वगैरह गए, यहाँ तमिलनाडु से जाकर जो है मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह और सिंगापुर वगैरह जाके वहाँ पर बहुत जगह पर जो उसका पूरा विस्तार किया है। तो हमारा जो क्षत्रिय है वो दुनिया में कहीं पर भी जाए, एक जना जाने के बाद में वहाँ पर वो राज करता है, वो उसके अंदर में ये क्षमता है जी। महाराज जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में वन्य कुल क्षत्रिय की संख्या कम नहीं है। हम सबसे बहुमत हैं और 38% है जो वन्य तमिलनाडु में रहते हैं। ये सबसे बड़ी संख्या में रहते हैं, ये सबसे बड़ी जाति है, ये कोई कम जाति नहीं है। आरक्षण हम लोगों ने मांगा क्योंकि आरक्षण तो मिला नहीं है। 10% जो हम लोगों ने मांगा था वो आरक्षण ने, जो सरकार यहाँ पर चलती है उन्होंने हमको आरक्षण नहीं देने से मना कर दिया है। जबकि यहाँ पर आप कहीं पर भी कोई भी जो रिकॉर्ड है उसमें 2011 में जब सेंसस लिया था उसमें क्षत्रिय वन्य क्षत्रिय 36% है, जो सबसे बड़ी आबादी है तमिलनाडु में। और ना कि तमिलनाडु में, यहाँ पर जो तेलंगाना है, कर्नाटक है, केरला में, दक्षिण भारत में कोई भी जगह हो, यहाँ पर वन्य क्षत्रिय तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। इसलिए आप जो कह रहे हैं वो थोड़ा गलत सूचना आपको मिला है। मेरे को कोई मैं पढ़ा था, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत से ऐसी होती है कि उपजाति भी होता है, जाति के अंदर में उपजाति। मान लो भाई आपका भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, ऐसा भी होता है। हम लोग एक ही हैं, हम सूर्यवंशी हैं और हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा कुल है वो है दम्मू महाराज जी। और किसी दिल खोल के बोलेंगे, हर एक वन्य से पूछिए, तमिलनाडु में कम से कम 3 करोड़ की आबादी होगी क्षत्रियों की, इसमें कोई भी संख्या कम नहीं हो सकती। ये हम लोग दिल ठोक के ये ना 2011 का रिकॉर्ड है, ये आज का रिकॉर्ड नहीं है। ये 2011 का जो रिकॉर्ड है उसके बाद सेंसस नहीं लिया था, इसलिए सबसे ज्यादा आबादी है। यहाँ पर हम राज करने में कुछ सरकारों में कुछ लोगों का योगदान की वजह से हम लोग नहीं है, बल्कि हमारा योगदान सबसे ज्यादा महत्व है। वो हमेशा से क्षत्रियों का योगदान आगे रहेगा, हमेशा आगे रहेगा। इसमें कोई इतिहास को कोई बदल नहीं सकता, इतिहास को कोई बदल नहीं सकता। वो देखिए कि पूरा भारत के अंदर में 8 करोड़ से भी ज्यादा क्षत्रिय है। यदि वो क्या है कि आप कुछ भाई के आप लोग छोड़ दिया तो उसको भी साथ लाने की जरूरत है। हम लोग कभी छोड़ेंगे नहीं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। वो सबको एक हो के रहना है। अभी हमारे मेहरबान मुकराना जी आगे सब सारी बात बताएंगे और भी वो सारी। बहुत 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 धन्यवाद।